Hello children, how are you all? I hope all of you are fine and safe at home and enjoying your learning. Okay, so today I am back again with the new lecture, or you can say presentation. This presentation is for class 5. Subject is English grammar. Chapter 5 nouns, and it is gender. Okay, it is from our book PC Wren's Grammar. It is our lecture 1 for this chapter. Okay, children, in chapter 4 we studied nouns. Okay, we studied there are 4 types of nouns. Now in this complete chapter we will study about nouns, gender, लिंग के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, so let's start children. Okay, before explaining this I would like to tell you that gender, there are 4 types of gender. Okay, masculine, feminine, common and neuter. How many types of genders are there? There are 4 types of genders: masculine, feminine, common and neuter. Okay, so our first type of gender is masculine gender. Masculine gender means male gender. Okay, यानी कि पुरुष लिंग, जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं. So let's learn the definition. Nouns means संज्ञा that tell about male sex belong to masculine gender. Okay, means वो संज्ञा शब्द जो हमें मेल जाति का बोध कराते हैं, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? masculine gender. Like means examples, like man, आदमी, lion, शेर, hero. Okay, boy, लड़का, father means पिता, etc. Okay, there are many more words are there. ठीक है, nouns that tell about male sex belong to masculine gender. Okay, so I think it is clear to you. Now let's see examples. Okay, here are examples. Here is a picture of a boy and with a sheep. Okay, or with a, we can see it is a sheep, bhed. The boy has a sheep named Sky. Okay, this boy has a sheep named Sky. Here this boy, लड़का, कौन सा लिंग है ये, कौन सा जेंडर है? It is male gender. Okay, so it is masculine. Has a sheep named Sky. Sheep means bhed. कौन सा जेंडर है? masculine. Sky क्या है children? It is name of this sheep. So it is proper noun. I told you na in previous chapter about nouns, common and proper. So this is written with capital letters. So it is a proper noun. ठीक है? He owns a good few ram. Okay, he owns a good few ram. Ram is again bhed. Okay, so clear हो गया ना? He किसके लिए आया यहाँ पे? Means somebody for male, यानी कि boy, father, grandfather, किसी भी male person के लिए हम he लगाते हैं. फीमेल के लिए क्या लगाते हैं? she लगाते हैं. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Let's start. Next is our feminine gender. Which gender is this? Feminine gender means स्त्रीलिंग. ठीक है, let's see the definition. Definition देखते हैं. Nouns that tell about female sex belong to feminine gender. वो नाउन यानी कि संज्ञा शब्द जो हमें
फीमेल सेक्स के बारे में बताते हैं वो कौन से जेंडर होते हैं, फेमिनिन जेंडर। फीमेल मीन्स जो हमें स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, ठीक है। दोज बिलोंग टू फेमिनिन जेंडर, वो स्त्रीलिंग से बिलोंग करते हैं। लाइक मीन्स एग्जाम्पल्स, वुमेन मीन्स औरत, काउ गाय, हेन मुर्गी, गर्ल लड़की, क्वीन रानी, एक्सेट्रा, एंड देयर आर मैनी मोर, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज इट वंस मोर। नाउन्स that tell about female sex belong to feminine gender, वो सभी नाउन यानी कि संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति के बारे में बताते हैं वो कौन से जेंडर होते हैं, फेमिनिन जेंडर मीन्स वो क्या होते हैं, स्त्री लिंग, जैसे कि वुमेन, काउ, हेन, गर्ल, क्वीन, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी वर्ड्स कौन से लिंग को बता रहे हैं, स्त्री लिंग को बता रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। विद हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स इट विल बी मोर क्लियर, ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दी गर्ल इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, लड़की एक हॉर्स पर राइडिंग कर रही है। सो द अंडरलाइंड वर्ड, जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, दैट इज योर विच जेंडर, फेमिनिन जेंडर, वो कौन सा लिंग है, स्त्री। गर्ल मीन्स लड़की, किस पे राइडिंग कर रही है, हॉर्स पे। लुक हियर पिक्चर इज गिवन ऑल्सो, दिस गर्ल इज राइडिंग अ हॉर्स। अब हमें हॉर्स क्यों नहीं अंडरलाइन किया चिल्ड्रन, बिकॉज हॉर्स मीन्स घोड़ा, इट इज masculine gender, and here in this we are reading examples of feminine gender. The mare runs fast as she can to win. Mare means घोड़ी, mare means घोड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay children, next is our common gender. Common gender refers to member of species that can be male or female. कॉमन जेंडर जो होता है वो ऐसी स्पीशीज से मीन्स जातियों से बिलोंग करता है जो कि मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, यानी कि पुरुष जाति भी हो सकती है और स्त्री भी, पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग भी, ठीक है। These can be either male or female, like teacher, child, worker, friends, cousin, neighbor, etc. Okay, let's see again. Common gender refers to member of species that can be male or female. कॉमन जेंडर हमें उन जातियों के बारे में बताते हैं जो कि मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक दीज कैन बी ईदर मेल और फीमेल, लाइक टीचर, चिल्ड्रन टीचर कैन बी योर मैम और योर सर, ठीक है, मैम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं। चाइल्ड, अ चाइल्ड कैन बी अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। वर्कर, अ वर्कर कैन बी अ मेल और अ फीमेल, आदमी भी वर्कर हो सकता है, औरत भी वर्कर हो सकती है। फ्रेंड्स और फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड क्या हो सकता है, इट कैन बी अ बॉय और इट कैन बी अ गर्ल। कजिन, कजन ब्रदर कैन बी देयर, कजन सिस्टर कैन बी देयर। नेबर, पड़ोसी, ओके, मेल कैन बी देयर, फीमेल कैन बी देयर। आपके पड़ोस में तो अंकल भी हो सकते हैं, आंट भी, भैया भी, दीदी भी, ठीक है। सो कॉमन जेंडर बिलोंग्स टू बोथ, ओके, इसमें दोनों हो सकते हैं, मेल भी फीमेल भी। लाइक बेबी, बेबी मीन्स बेबी बॉय कैन बी देयर, बेबी गर्ल कैन बी देयर। डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स मेल डॉक्टर कैन बी देयर और फीमेल डॉक्टर कैन बी देयर, ठीक है। सो लेट्स सी देयर एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स, अ टीचर डजंट हैव टू बी स्मार्ट, ठीक है, अ टीचर डजंट हैव टू बी स्मार्ट। एक टीचर यानी कि सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती हैं, ओके। द डॉक्टर सीम्ड टायर्ड
and in a hurry. The doctor seemed tired and in a hurry. The doctor can be a male doctor or a female doctor. Children, usually it belongs to professions. Okay, जो भी professions होंगे आपके, like advocate, so advocate क्या हो सकता है? boy भी हो सकता है, girl भी, doctor, teacher, lawyer, okay, CAs, ये जो सभी प्रोफेशन है, इंजीनियर, इसमें क्या हो सकता है? बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, ठीक है, मेल कैन बी देयर और फीमेल कैन बी देयर. द डॉक्टर सीम्ड टायर्ड एंड इन अ हरी. डॉक्टर कैसा लग रहा था? टायर्ड, थका हुआ और थोड़ी जल्दी में भी. ठीक है, क्लियर? आगे चले. ओके, नाउ कम टू लास्ट टाइप ऑफ जेंडर. इट इज आवर न्यूटर जेंडर. On neuter gender, maleness and femaleness doesn't apply. Doesn't means short form है ये does not की. किसकी? does not की. doesn't. These are neither male nor female, like book, table, pen, gold, school and rock. Okay? These are usually non-living things. Neuter gender. On neuter gender, maleness and femaleness doesn't apply. यानी कि न्यूटर जेंडर पे या पुरुष जाति या स्त्री जाति अप्लाई नहीं होती. These are neither male nor female. ये ना ही पुरुष जाति होते हैं ना ही स्त्री जाति होते हैं. Like book, किताब, टेबल, मेज, पेन, ठीक है, पेन, गोल्ड यानी कि सोना, स्कूल एंड रॉक, पहाड़ या पर्वत. These are usually non-living things. ये अधिकतर कौन सी चीजें होती हैं? non-living things होती हैं. ठीक है, ओके, like tree, chair, refrigerator, fan. Okay, many examples are there. ठीक है चिल्ड्रन, आगे चले. Okay, examples are the scissors are not sharp. Okay, look, these scissors are not sharp. Sharp means penny, scissors means कैंची. Children, जब भी हम कुछ nouns ऐसे हैं जिनको हम हमेशा plural में यूज करते हैं, like scissors, pants, trousers, okay, socks. कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे मेरा सोक कहाँ है, हम हमेशा बोलेंगे मेरी socks कहाँ है, where are my socks. ठीक है. These scissors are not sharp. कैंची sharp यानी कि पैनी नहीं है. This glue doesn't adhere to plastic. This glue doesn't adhere to plastic. ठीक है, ये ग्लू किस पे अप्लाई नहीं होती? प्लास्टिक पे अप्लाई नहीं होती. ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? We studied about types of gender. We studied about types of gender. How many types of gender are there? There are 4 types of genders. Okay. First one is masculine gender. Second is feminine gender. Third is common gender. And last one is neuter gender. ठीक है, हमने 4 टाइप के genders के बारे में इसमें पढ़ा. Okay, so children, now we will study formation of feminine from masculine. हम masculine gender से feminine gender बनाने की प्रोसेस सीखेंगे. ठीक है. In your book there are 3 types. 3 तरीके से दिए गए हैं हमें प्रोसेस from masculine to feminine. ठीक है, पुरुष जाति से स्त्री जाति यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाना है. ठीक है. सो लेट्स सी. सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैस्कुलिन बाय एडिंग. ठीक है, कुछ फेमिनिन नाउन्स जो हैं यानी कि स्त्री जाति जो हैं आर फॉर्म्ड बनाए जाते हैं फ्रॉम मैस्कुलिन बाय एडिंग. मैस्कुलिन से क्या करके? ऐड करके. ओके, व्हाट? Like suffixes. I told you ना in previous chapter also suffix क्या होते हैं?
जो पीछे लगाए जाते हैं, यानी कि प्रत्यय। और प्रीफिक्स क्या होते हैं? उपसर्ग, जो आगे लगाए जाते हैं। ठीक है, प्री मीन्स पहले का। ओके, सो लेट्स सी चिल्ड्रन, सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैस्कुलिन बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक ESS, समटाइम्स विद अ स्लाइट चेंज। ठीक है, कभी कभी कुछ चेंज के साथ भी लगाया जाता है। और INE, ठीक है, एज मीन्स एग्जाम्पल्स वी विल सी। पोइट, okay, we will add ESS, it will become poetess. Poet means kavi, poetess means kavitri. Hero, ठीक है, hero, we will add INE, it will become heroine. Shepherd, okay, add ESS, it will become shepherdess. Okay, is it clear children? Poet will become poetess, hero will become heroine, shepherd will become shepherdess. ठीक है, okay, so children, as you all know, after ending every chapter I give you homework always. So in this chapter also I am going to give you homework. ठीक है, होमवर्क में मैं आपको क्या दे रही हूँ? I am giving you, like I have taught you, all 4 types of gender, that is masculine, feminine, neuter, कॉमन। मैंने आपको चारों तरीके के जेंडर पढ़ा दिए। नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू जेंडर वर्ड्स। ठीक है, नाउन वर्ड्स, मैं आपको नाउन दे रही हूँ और आपको क्या बताने हैं? इनके जेंडर बताने हैं। कैसे? आइडेंटिफाई दी वर्ड्स इफ दे आर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन। जेंडर नाउन, ये नाउन कौन से जेंडर है वो लिखना है। ठीक है, मैस्कुलिन मीन्स पुलिंग, फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग, न्यूटर जेंडर इट इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, कॉमन जेंडर फॉर मेल और फीमेल बोथ। ठीक है, आपको बताना है हंटर, शिकारी, एप्लीकेंट, कंप्यूटर, स्पिंस्टर, पुलिसमैन। हंटर, एप्लीकेंट, कंप्यूटर, स्पिंस्टर एंड पुलिसमैन। ओके, इनके सामने आपको यहाँ लिखना है इफ इट इज मैस्कुलिन राइट M, फेमिनिन F, न्यूटर के लिए N, कॉमन के लिए C. ओके, ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 4. हमने लेक्चर 2 नाउन्स में पढ़ा था. ठीक है, अब हम देखेंगे क्या होमवर्क दिया था और उसका सॉल्यूशन. चिल्ड्रन, आई गेव यू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. आई टोल्ड यू ना कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनाते हैं. मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम 3 तरीकों से बनाते हैं. कैसे? नाउन से, लाइक चाइल्ड से चाइल्डहुड. ठीक है, वर्ब से या फिर एडजेक्टिव से. होमवर्क में आई गेव यू 2 फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव. ब्रेव मीन्स बहादुर, bravery means bahaduri. Okay, the brave soldiers fought with bravery, यानी कि बहादुर सिपाही बहादुरी से लड़े. brave means बहादुर, it is adjective. We have added ry, it has become bravery. क्या बन गया ये? बहादुरी. kind means दयालु. our kind king is famous for its kindness. हमारा दयालु राजा इसकी दयालुता के लिए फेमस है. kind means दयालु, kindness means दयालुता. free आजाद, freedom आजादी. ओके, real means असली, reality means real means सच्चा या असली, reality means असलियत या सच्चाई. ओके, आई थिंक ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट एंड यू हैव चेक्ड देम. मुझे लगता है आपके सभी आंसर्स करेक्ट हैं और आपने उन्हें चेक भी कर लिया है. फिर से आपको एक बार हिंदी बता देती हूँ. ब्रेव बहादुर, ब्रेवरी बहादुरी, काइंड दयालु, काइंडनेस दयालुता, फ्री आजाद, फ्रीडम आजादी, रियल सच्चा, रियलिटी सच्चाई. ठीक है चिल्ड्रन, I think all of you have corrected your answers. If they are not correct,
ओके चिल्ड्रन, नाउ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, दैट all of you subscribe our @Quack YouTube channel, like and share our videos, tell your relatives and friends about them. Okay, thank you children, have a nice day.